Students, today we are going to discuss about gonads. Gonads means testes in males and ovaries in females. And we all have studied in previous chapter that there is a gland named pancreas which works as heterocrine glands. The same way, the testis and ovary both are like heterocrine glands because they are behaving partly as exocrine gland because they produce gametes, as well as they behave as endocrine gland because they secrete certain hormones, and their hormones control the reproductive activities, and they are also secreted from the at the time of puberty, you can say. So first we are going to discuss with the testis. First gland is the endocrine part of the testis is formed of group of cells that are called interstitial cells or Leydig cells, because testis is made up of seminiferous tubules. तो टेस्टिस बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, यू कॉल देम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनसे मिलकर के बनी होती है. सपोज इफ यू कट द टीयर्स, तो दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड इन बिटवीन इट द टिश्यू विच इज़ फिल्ड, और there are certain cells. These are known as Leydig cells or interstitial cells, which are present in between the seminiferous tubule cells, because this is seminiferous tubules. टीएस सेक्शन है, जब उसको आप कट करते हैं तो ऐसे सर्कुलर आपको दिखाई देगा. देन बीच में दिस इज मैट्रिक्स, सारा ग्रीन कलर का ये मैट्रिक्स कहलाता है, एंड बीच में ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड लेडिक सेल्स और LYDIG apostrophe लेडिक्स सेल्स. लेडिक्स इज द नेम ऑफ बायोलॉजिस्ट, तो उनके नेम पर लेडिक सेल्स भी बोलते हैं इसको, और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सिक्रीट द हार्मोन, मेल हार्मोन यू कैन से. तो these Leydig cells are scattered in between the matrix, or you can say connective tissue of seminiferous tubules, and the function is to secrete the male hormones that are commonly called androgens. Male hormones कई सारे होते हैं, उनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं androgens, and androgens are secreted by the androgens. They are secreted by the ICSSH. We have studied interstitial cell stimulating hormone is the full form of ICSH. So it is the part of pituitary. तो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो दे आर एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एपीएंडोस्टेरोन, डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन. देयर आर दीज ऑल आर द मेल हार्मोन. बस इनमें से जो एक सबसे कॉमन है, वी नो दैट टेस्टोस्टेरोन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज हार्मोन, बट बेसिकली आप उसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से ही जानते हैं. तो व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? वी ऑल नो that the male hormone or testosterones have few functions. One is control and growth. You can say control the growth and development of male secondary sex organs like prostate gland, seminal vesicles, epididymis. तो ये सारे ऑर्गन्स को उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है. एंड साथ में हम ये भी जानते हैं कि इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर, मस्कुलर ग्रोथ, एंड लो पिच ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स मेल्स में उनको स्टिमुलेट करता है, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल बिहेवियर इन मेल. एंड ऑल्सो एंड्रोजेंस प्रोड्यूस एनाबोलिक, which I have to write it here, that is anabolic effect. Anabolic. So anabolic effects are also there. What are anabolic effects? तो एंड्रोजन प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बेसिकली. तो उनके ऊपर जो है इनका इफेक्ट वो होता है, एनाबोलिक इफेक्ट. एंड there is one more thing which is very important, that testis is also responsible for the spermatogenesis. That means formation of sperms and maturation of sperms. So suppose if this hormone releases in very small amount, or it fails to secrete from the testis, so what will happen? The person suffer from eunuchodism. EUNCHOIDISM, eunuchodism, and this person is called as eunuch,
और न्यूटर कहते हैं, कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और यू कैन से फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल्सो फेल्स, तो द पर्सन बिकम स्ट्राइल। तो दैट मीन्स उनमें जो मेल जैसे कैरेक्टर्स हैं वो उनके अंदर नहीं होते और ना ही स्पर्म्स उनके अंदर बनते हैं। दैट पर्सन इज यूल्ड एज कॉल्ड एज यूनिच और नेक्टर। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज ओवरीज। तो ovaries are, as you all know, that just like testes, ovaries are also endocrine as well as exocrine in function, because ovaries secrete hormone as well as the function is to produce ova. तो दो काम है ना दोनों के, one is production of ova, another is secretion of female hormone. So it secretes various hormone, especially we all know that estrogen is the main hormone which is secreted by the ovaries. So how it secretes these hormones, because जैसे हमने भी बात की कि testis में there are groups of hormone, in the same way in females also there are set of hormones, काफ़ी सारे जो हैं hormones होते हैं, केवल ये एक ही नहीं होता। लाइक बीटा एस्ट्राडियोल इज़ देयर, बीटा एस्टिरोन एंड एस्टिरोल, ये सारे हॉर्मोन्स होते हैं, बट एक ज़्यादा फेमस है जो हम एस्ट्रोजन उसके नाम पे हम जानते हैं। तो दीज हॉर्मोन्स एंड ऑल आर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, एंड दीज स्टीरॉयड हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर एपिथेलियल cells of developing Graafian follicle. Graafian follicle is an important name, short में I have written as GF, Graafian follicle. तो Graafian follicle, what are Graafian follicle? So suppose this is the ovary. So here is lots of maturing follicle like structures are there. इस तरह से structures होंगे, लाइक अगर थोड़ा सा बड़ा करके बनाओ इस तरह से, फॉलिकल सेल्स जो हैं वो इसके अंदर पड़े होते हैं। तो बहुत सारी होती हैं, छोटी प्राइमरी स्टेज में ऐसे फॉलिकल्स, फिर थोड़ा सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर इतनी बड़ी, फिर उसके बाद you can imagine like this is also a Graafian follicle. These are the Graafian cells, and in between it developing ova is there, like that. So this is the Graafian follicle. तो this Graafian follicle सिक्रीट्स हार्मोन, लाइक जो मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग ईस्ट्रोजन का तो मेन नाम लेते हैं, बट बीटा एस्ट्राडियोल, ईस्टिरोन, ईस्टिरोल, ऑल दीज आर फीमेल हार्मोन्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ईस्ट्रोजन. तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईस्ट्रोजन, एंड ईस्ट्रोजन इज स्टिमुलेटेड बाई FSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, वी ऑल नो दैट. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, सेम एज हमने मेल में पढ़े थे, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन थे, वैसे ही हम फीमेल में ईस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं, लाइक स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एट्सेट्रा, and they also control the development of female secondary sexual character like high pitch of voice, development of breast, broadening of pelvis. तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं फीमेल्स के अंदर, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और लाइक दैट. And also they regulate the female sexual behavior and decrease the secretion of FSH while increase the secretion of LH, luteinizing hormone इसका मतलब है. और सपोज इसमें अगर नहीं निकलते ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से प्रॉपर, और यू कैन से कि अगर दे फेल टू सिक्रीट द ओवरीज फेल टू सिक्रीट द हार्मोन, तो हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है फीमेल में, अगर ये हार्मोन ईस्ट्रोजन नहीं निकलता, और हाइपोसिक्रीशन में इसमें बहुत कम सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इट कॉजेज फीमेल यूनिचोटिज्म, एंड सेम कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टर्स लाइक मेल. तो उनमें भी जो फीमेल में जो जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है वो नहीं होता, एंड फीमेल ऑल्सो बिकम स्ट्राइल, तो उनको हम बोलते हैं यूनिच, फीमेल यूनिच. And there is another hormone, female hormone, that is called progesterone. Progesterone is also a steroid hormone, and it's secreted by the endocrine gland, that is called corpus luteum. Suppose मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, this is Graafian follicle, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, this is known as Graafian follicle. Suppose अब ये Graafian follicle जब मेच्योर होएगा तो इसमें से क्या होगा कि ये जो ओवा है ये निकल जाएगा यहाँ से, this ova will remove, ये यहाँ से ओवा निकल आएगा, कहाँ पर, यहाँ ऐसे, यहाँ पर यू कैन से, ये यहाँ से स्प्लिट बर्स्ट हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, एंड ओवा मूव्स आउट, ओवा यहाँ पे निकल के ऐसे आ जाएगा, ओवरी से बाहर आ रहा है, तो ये यहाँ से निकल गया. अब जब ओवा निकल गया देन इट विल बिकम Graafian follicle बिकम एम्प्टी, ये एम्प्टी रह गई ना, तो इट
converts into a yellow color of gland, and this yellow color gland is known as corpus luteum, क्योंकि ओवा जो है वो क्या हो गया, वो निकल करके आ गया है बाहर, ठीक है, बिकॉज ओवरी से कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब्स में जाएगा, तो ये निकल कर आ गया, तो दैट मीन्स यू कैन से एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम. तो नाउ यू कॉल देम corpus luteum, and corpus luteum is a endocrine gland, and you can simply say empty graphene follicle is known as corpus luteum. एंड जो ये कॉर्पस लूटियम है, इट स्टार्ट सिक्रीटिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन. तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेंटेन करने का काम करता है प्रेगनेंसी को, तो इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमने पढ़ा था पीछे, तो उसमें भी आपको याद रखना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज प्लेसेंटा ऑल्सो. तो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज स्टिमुलेटेड बाई LH, जब भी LH का सिक्रीशन ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, and it also it maintains the you can say pregnancy in the females, and also stimulates the and proliferate the mammary glands and enlargement and of breast also. So these are the various hormones and their functions. So students, this is all for today. We will discuss next thing in the next lecture.